We heard them singing a carol and singing it quietly, beautifully. It was Stille silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. Okay, in this stanza, author says that उस रात हमारी खंदकों में, मोर्चों में हमने उन्हें अति सुंदर तरीके से गीत गाते हुए सुना. ओके, स्टिल नच था. हमारे सैनिकों ने भी वाइल शेफर्ड्स वास्ट समूह गान में अपने सुर में सुर मिलाया. हमने कुछ देर के लिए गीत गाए, फिर सभी शांत हो गए. हमें एक शांत और अच्छाई का दिन मिला था. एक ऐसा समय था जो मैं सारे जीवन के लिए खजाने के समान संभाल कर रखूंगा. ओके, प्लीज टर्न ओवर डियरेस्ट कोनी. बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट आई डिस्टेंट and terribly memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. Okay, your loving Jim. यानी इसमें आप यहाँ पर कहते हैं, लेखक कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ था डियरेस्ट कोनी, यानी प्यारी कोनी, अगले साल क्रिसमस तक यह युद्ध कुछ नहीं अपितु एक भूली बिसरी और भयानक याद बनकर रह जाएगा. मुझे जो कुछ आज हुआ उससे पता चला कि दोनों सेनाएं शांत रहना चाहती हैं, शांति चाहती हैं. हम दोनों फिर मिलेंगे, इस बारे में मैं आश्वस्त हूँ. तुम्हारा प्यारा जिम. ओके, थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस लेसन. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridgeport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping. The windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew. Now the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burrington House on the Dorchester Road on the other side of the town. Okay, यानी in this third stanza author says that, author कहते हैं कि मैंने पत्र को वापस मोड़ा और उसके लिफाफे में वापस डाल दिया. ठीक है, मैं सारी रात जागता रहा. सुबह हुई, मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है. मैं गाड़ी चलाकर ब्रिजपोर्ट गया जो कि कुछ ही मील दूर था. ठीक है, मैंने एक लड़के से पूछा जो कि अपने कुत्ते को सैर करा रहा था कि कॉपर बीचेस कहाँ है. तो मैंने पाया कि नंबर 12 आगे से नष्ट एक टूटा फूटा मकान जिसकी छत में दरारें पड़ी हुई थी और खिड़कियाँ लकड़ी लगाकर बंद कर दी गई थी. मैंने अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि क्या कोई मिसेज मैकपर्सन के बारे में जानता है. ओ हाँ, एक वृद्ध आदमी ने कहा कि
यह उसे अच्छी तरह से जानता है। उसने मुझे बताया कि वह एक प्यारी सी स्त्री थी, अच्छी स्त्री थी, थोड़ी सी बददिमाग, किंतु उस उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है। क्या ऐसा नहीं है? वह 101 वर्ष की है। वह इस घर में थी और उस घर को आग लग गई थी। कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, किंतु आग निश्चय ही मोमबत्ती से लगी होगी। वह बिजली की अपेक्षा मोमबत्ती प्रयोग करती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि बिजली बहुत महंगी थी। अग्निशामक दल ने उसे सही समय पर बाहर निकाल लिया। अब यह शहर के दूसरी तरफ डोरचेस्टर रोड पर एक नर्सिंग होम बर्लिंगटन हाउस में थी। उसने मुझे बताया था। ओके, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम easily enough. There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. I said I was friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room, where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. Okay. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others. She told me she's rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know. No one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. Okay, she took me into a conservatory with wicker chairs, okay, and potted plants all around and left me. Okay, in this stanza author says that मैंने बर्लिंगटन हाउस अस्पताल आसानी से ढूंढ लिया। हॉल में ऊपर कागज की चेन लगी हुई थी और कोने में एक रोशनी से नहाया हुआ क्रिसमस का वृक्ष रखा हुआ था, जिसके शिखर पर एक परी रखी थी। मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकपर्सन का मित्र हूँ और उनके लिए क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। मैं भोजन कक्ष में देख सकता था कि सभी कागज की टोपी लगाए हुए थे। गुड किंग वेंसलेस गीत गा रहे थे। नौकरानी ने भी कागज की टोपी पहन रखी थी और मुझे देखकर प्रसन्न प्रतीत हुई। उसने मुझे उपदवम पाई का एक टुकड़ा पेश किया। वह मेरे साथ गलियारे तक गई। ठीक है, मिसेस मैकपर्सन दूसरों के साथ नहीं रहती, उसने मुझे बताया। वह आज थोड़ी सी चिंतित थी, यानी थोड़ी सी परेशान थी। तो हमने सोचा कि यह सर्वोत्तम होगा, ये यानी बहुत अच्छा होगा कि वो थोड़ा आराम करे। आप तो जानते ही हैं कि उसका कोई परिवार नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आता, इसलिए मुझे विश्वास है कि वह आपको देखकर बड़ी प्रसन्न होगी। वह मुझे बातचीत करने वाले कमरे में ले गई, जहाँ चारों ओर पुरानी कुर्सियाँ और पौधे लगे हुए गमले रखे हुए थे। ओके, और मुझे वहीं छोड़कर चली गई। ओके, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy one. She was gazing out at the garden. "Hello," I said. She turned and looked up at me vacantly. "Happy Christmas, Connie," I went on. "I found this. I think it's yours." As I was speaking, her eyes
never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition, recognition, and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. For a while, she said nothing but struck the letter tenderly with her fingertips. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वृद्ध स्त्री, यानी वहाँ पर जो एक बूढ़ी स्त्री थी, वृद्ध स्त्री एक पहिएदार कुर्सी पर अपने हाथों को गोद में टिकाए बैठी हुई थी। उसने बाल, यानी उसके बाल चांदी जैसे श्वेत थे और अच्छी तरह से बंधे हुए थे। ओके, अच्छी तरह से बंधे हुए थे। वह बाहर बगीचे की तरफ देख रही थी। हेलो, मैंने कहा। वह मुड़ी और खालीपन यानी नीरसता से मुझे देखा। वैकेंटली, यानी उसने मुझे खालीपन से देखा। कोनी, क्रिसमस की बधाई हो, मैं कहता गया। मुझे यह मिला है, मुझे लगता है कि यह आपका है। जब मैं बोल रहा था तो उसकी आंखें मेरे चेहरे से कभी नहीं हटी थी। मैंने टिन का डिब्बा खोला और उसे दिया। तब उसी क्षण उसकी आंखें एक जाने पहचाने भाव से चमक उठीं और उसके चेहरे पर अचानक खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। मैंने मेज के बारे में विस्तार से बताया। मैंने इसे कहाँ पाया था, किंतु मैं ये नहीं सोचता था कि वह सुन रही थी। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ, तो मैं ये नहीं जानता था कि वो ये सोच रही थी और वो सुन रही थी। एक क्षण के लिए उसने कुछ न कहा, किंतु अपनी उंगलियों से उस पत्र को प्रेम पूर्वक सहलाती रही। ओके, सडनली, नेक्स्ट स्टैंजा, प्लीज टर्न ओवर। Suddenly she reached out and took my hands. Her eyes were filled with tears. You told me you had come home, and by Christmas, dearest, she said, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. Okay, यानी in this stanza, author says that, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अचानक ही उसने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसने मुझे कहा कि तुम क्रिसमस के दिन तक घर आओगे प्रिय। उसने कहा, यानी वो सोच रही थी कि क्रिसमस के दिन तक तो आ जाओगे प्रिय। उसने कहा, और आज तुम आ ही गए। विश्व का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार है। और पास आओ जिम, मेरे पास में बैठो। I sat down beside her and she kissed me cheeks. Read your letter so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I had loved that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. Okay, यानी in this last stanza, author says that, यहाँ पर बताया गया है कि मैं उसके पास बैठ गया, यानी I sat down beside her, यानी मैं उसके पास बैठ गया और उसने मुझे प्यार से बिहेव किया। मैं तुम्हारे पत्र को कई बार पढ़ती थी जिम, हर दिन मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। उसने मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि तुम मेरे पास हो। अब तुम आ गए हो और इस पत्र को स्वयं पढ़कर सुना सकते हो। जिम प्रिय, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? मैं केवल तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। मुझे इससे बहुत मैं इस आवाज़ से बहुत प्यार करती हूँ और
तब हम शायद चाय पियेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बना रखा है जिस पर चारों तरफ मार्जिपन लगा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Thank you students. That's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.